the business, and it's a notice which justifies that. Question is not of whether the ordinance has been issued. I agree with my honorable colleague, Shri Naresh Agarwal. When an ordinance has been promulgated, it becomes the law until the bill is brought and it is ratified by the House. So as of today, the law which was there, passed by both the Houses of Parliament, has been arbitrarily changed against the interest of the farmers, against the interest of the poor. And therefore, we cannot accept this situation that the government will legislate through ordinances by passing the legislature, by passing parliamentary scrutiny. That is unacceptable. Particularly this particular act, इस पे माननीय उपसभापति महोदय, पूरे देश की रजामंदी थी, पूरे देश की सहमति इस पे थी। जब ये संसद में पास हुआ है, बीजेपी भी उसमें शामिल थी, अगर सरकार को इस पे कोई भी चर्चा करनी थी, पहले बरसों लगे थे, किसानों के संगठनों से बात हुई, राज्य सरकारों से बात हुई, यहाँ एक नया तरीका है बिना किसी से बात किए मनमानी करना, पर वो भी जहां 70% जनता के हित की बात है। If you want to discuss, come with a proper motion. पहले इस पे चर्चा होगा, हम मोशन लाने को तैयार हैं, हम मोशन ले आइए। We can bring the motion now. This has to be withdrawn. The government must say that they will withdraw this ordinance. No. Yes. Leader of the House. Leader of the House. Yes, please. No, Leader of the House. Please. Leader of the House. अध्यक्ष जी, अभी ये कहा गया कि No, please. 1 second. The poster, please. No, don't do that. तो राज्यसभा में इस वक्त आप देख रहे थे भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर राज्यसभा में इस वक्त टकराव देखने को मिल रहा है। मोदी सरकार की अगर हम बात करें तो इधर अब से थोड़ी देर में लोकसभा में संशोधित भूमि अधिग्रहण बिल पेश करेगी, लेकिन एक बार वापस हम रुख करना चाहेंगे राज्यसभा का। तक 636 ऑर्डिनेंसेस आ चुके हैं, उसमें से 80% तब आए हैं जब आनंद शर्मा जी की पार्टी सरकार में थी, और इसलिए No, please. Don't do that, please. Don't do that. No, don't do that. Sit down. Please don't do that. No, please sit down. Please sit down. Sit down, please. Please sit down. Hanumanta Rao, sit down. No, Govardhan Reddy, sit down. Sit down, Subramanian Reddy. No, please sit down. Please sit down. अध्यक्ष जी, No, please sit down. No, please. Now, see, this is the tradition of the House that the Leader of the House will be heard in silence. Please take your seat. Please take. Leader of the House. Sit down. Leader of the House. Sit down. Don't do that. Honorable members, the Leader of the House and Leader of the Opposition will always be heard in silence. I am repeating. The Leader of the House and the Leader of the Opposition are always to be heard in silence. That is the practice and tradition of this House. Please don't violate that. Sit down, please. जो ऑर्डिनेंस जिसको राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिलती है, दोनों सदनों में पारित करना उसको आवश्यक होता है। इसलिए इस देश के पहले प्रधानमंत्री जो थे, जिनका सारा देश आदर करता है, उनकी सरकार के दौरान 70 आए थे, और जब मेरे मित्र वामपंथी दल, जिसमें केसी त्यागी जी की पार्टी भी शामिल थी, इनकी यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, तो 18 महीने में 77 बार आए थे। और इसलिए आज Sit down, please. Please sit down. Please listen to. जरा सुनिए, आप लोग सुनिए। अरे बैठो। तो इतना पढ़े लिखे आदमी है, बैठो।
बैठो इस Not नए allowed. तर्क का निर्माण कर लेना कि ऑर्डिनेंस के माध्यम से संसद को बाईपास किया जाता है, ये अपने आप में वाजिब नहीं है। इसलिए आज No, I'm not allowed. Sit down. No, not in between. Let him finish. Let him complete. Sit down. No, don't interrupt like this. I'm not allowing. I am not allowing. Sit down. Mungekar, you are itna learned member. Sit down. Baito. Sit down, Mungekar. Sit down. No, sit down. I will allow after whatever you want to say after Leader of the House has completed his speech. Sit down. No. Nothing will go on record. That will not go on record. I will allow after. But why do your member want to interrupt? Ask him. Yeah. Yes. Please. Sir, not only this, the government of which Mr. Anand Sharma was a minister till a few months ago brought ordinances. The Indian Medical Council Amendment Act ordinance was repromulgated 4 times. The readjustment and representation of scheduled caste and scheduled tribes ordinance was repromulgated 3 times. The Securities and Exchange Board of India Amendment Ordinance was repromulgated twice. So, इसलिए ordinances are bypassing Parliament is not an acceptable argument. Sir, this ordinance and with the accompanying bill is listed for introduction in the Lok Sabha today. Lok Sabha will discuss and debate it. Depending on if it is passed in the Lok Sabha, when it comes to this House, every argument is available to you. Please raise it. But you cannot, I underline this, you cannot preempt the Lok Sabha from discussing that bill. Okay, you complete. Sir, I'll call you. Sir, 1 minute. I'll call you. Sir. I'll allow you. Let him. Sir, I'll call you. Yes. अभी नेता सदन ने बात कही, संविधान का ज्ञान अच्छा रखते हैं और इस तरफ के लोग भी संविधान को रखते हैं। मुझे एक बात याद करानी होगी। देश के पहले प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। वो 17 साल रहे थे और उस समय देश का बंटवारा हुआ था, देश की आजादी हुई थी। उस समय 1950 में भारत का जो हमारा संविधान है वो बना और परिस्थितियां ऐसी थी। आज वो परिस्थितियां आपात परिस्थितियां नहीं थी। अगर आप चाहते हैं कि हमारी सरकार के समय में कब हुआ, आपने कुछ उल्लेख किया है, हमने जनहित के लिए लाए थे। आपने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का ऑर्डिनेंस कहा, वो 4 बार इसलिए लागू करना पड़ा क्योंकि आपने सदन नहीं चलने दिया था। हमने खाद्य सुरक्षा का लाया ऑर्डिनेंस, आपने उसका विरोध किया था। खाद्य सुरक्षा, आप किसान की जमीन को उसका मुआवजा खत्म करना, किसान की जमीन ले जाना चाहते हैं, बिना राज्यों से बात करके बात करना चाहते हैं। आप पूंजीपतियों के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए भूमि अधिग्रहण करना चाहते हैं, उस पर सामाजिक प्रभाव क्या, दुष्प्रभाव क्या होगा, उसको आपने हटा दिया है। कौन सी ऐसी आपात स्थिति थी? हर 27 दिन के अंदर आपकी सरकार एक ऑर्डिनेंस लाती है। हर 27 दिन में एक ऑर्डिनेंस आप उसमें से बता दें जो देश की जनता, देश के किसान के, देश के गरीब के हित का है। आपका हर ऑर्डिनेंस जन विरोधी है। और मैं बताता हूं आपको कि पार्लियामेंट को आप कैसे बाईपास करते हैं। उपसभापति महोदय, amendment to the land bill that you passed. No, please. Why did your chief ministers want an amendment to the land bill that you that's passed? not there. No, please. So, Sir, let me make one thing clear on Parliament, bypassing Parliament scrutiny. When you come with an ordinance, when there is an existing law, without discussing it with anyone, and in the Lok Sabha, right, each house has its own role to play. Please allow me. Please allow me. Your government
is bypassing parliament scrutiny because you bring in ordinances and Coming up for scrutiny the today. standing It's committees coming up are in the Lok Sabha eliminated. for scrutiny The today. standing committees don't scrutinize that. You pass them, you expect parliament to rubber stamp your ordinance way to legislate. That cannot. मैं उससे सहमत हूं, लेकिन ये असाधारण परिस्थिति है। ये पक्की तरह हमको मालूम है कि इस देश में ये जो लैंड एक्विजिशन का बिल है, इस देश में सबसे बड़ा उद्योग यदि कोई है तो वो खेती है, एग्रीकल्चर है। इस देश के 68 बरस में कोई इंडस्ट्री ने कमाल नहीं किया, कोई सिर्फ दो आपका जो 2 मिनट पूरा कर सर, मेरी विनती ये है कि नेता सदन ने जो बात कही है, ये हम समझते हैं, बहुत ऑर्डिनेंस आए, लेकिन इस देश में जो सबसे बड़ा उद्योग है वो एग्रीकल्चर है। और उसके बारे में इनने किसी से भी इन्हीं की पार्टी और हम लोगों ने एक कानून बनाया, 1 साल में वो जमीन पे भी नहीं आया, और इन्होंने पूरी तरह से बदल के ऐसा बदला कि अंग्रेजों का कानून के पीछे छूट गया। 120 बरस बाद हिंदुस्तान के किसानों का खेत और खलियान लेने का जो मामला है, अब ये कह रहे हैं कि अभी आएगा, ये हमें मालूम है, ये यहाँ नहीं आएगा। ये 3 बिल जो विड्रॉ कर रहे हैं, ये इनके पास मैसिव मेजॉरिटी हो गई है, तो ये बुलडोजर कुचलना चाहते हैं देश को, लेकिन ये कभी होगा नहीं, ये कुचल नहीं सकेंगे। ये देश में अकेले लोकसभा में लड़ाई नहीं होगी, देश में पूरे देश में लड़ाई होगी। ये उसको कुचलना चाहते हैं, उसको बुलडोज करना चाहते हैं, वो नहीं हो सकेगा। श्रीमती मायावती, इसको बहस करने श्रीमती मायावती तैयार है, श्रीमति मायावती, कुमारी मायावती, आप बहस के लिए लाइए, हम बैठ जाएंगे। शरद जी बैठिए, बैठिए, लेकिन आप नहीं लाइए। शरद जी बैठिए, आप संयुक्त सदन बुलाकर बैठिए, इसको पास करना चाहते हैं। शरद जी बैठिए, वो नहीं होगा, आप लाइए। शरद जी बैठिए, बैठिए, सदन में लाइए आप नहीं कुछ बिल को। शरद जी बैठिए, तैयार हैं, अभी शरद जी अपनी बात को विड्रॉ करके यहाँ सदन में आप लाइए उसको। शरद जी बैठिए, हम विड्रॉ करेंगे, लेकिन आप जो है कुमारी मायावती, शरद जी बैठिए। नीतियों में मतभेद हो सकता है। आपकी जो नीति है वो चाहती है कि इस देश में सिंचाई की योजना ना बने, ग्रामीण सड़क ना बने। आप अपनी नीति को कई बार इसको सोच के देखिए। हम किसानी वाले लोग हैं, हम किसानी वाले लोग हैं। आप सर कुमारी मायावती, हम जानते हैं कुमारी मायावती, शरद जी बैठिए। आप नहीं जानते, आपने खेत में कुछ काम नहीं किया, हमने खेतों में काम किया है। हम जानते हैं कि इसका चलते क्या होगा, क्या चलते होगा। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं संसद भवन, जहां पर भूमि अधिग्रहण बिल पर बवाल हो रहा है। रुक करेंगे राज्यसभा का। दूसरा, जो 5 एग्जेम्प्टेड पर्पस हैं वो कौन से हैं? नेशनल सिक्योरिटी, दूसरा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको शरद जी कहते हैं कॉर्पोरेट की मदद होगी, इसलिए मैंने कहा ग्रामीण सड़कें। तीसरा, हाउसिंग फॉर पुअर, हाउसिंग नहीं, हाउसिंग फॉर पुअर, और उसको एग्जेम्प्ट किया। और आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी जमीन की मालिक सरकार होगी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो नैरो कॉरिडोर ग्रामीण क्षेत्र से हाईवे के साथ से निकलेगा, जिससे कि सारे ग्रामीण क्षेत्र का साथ में विकास होगा। हर एक जो अपवाद रखा है, उन पुराने 13 जो अपवाद यूपीए ने रखे थे उसके साथ, उससे ग्रामीण क्षेत्र को लाभ होने वाला है। एक बार शरद जी फिर जाके उस कानून को आप पढ़िए। Now the point is, no, I want, see, I will allow you, 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 I will allow.
Now see, I see, sit down, sit. I will allow you, yes, that's what I am saying. I know it, sit down. I will allow you. अरे बोलिए, बैठिए, बैठिए, नहीं ना, बैठिए, 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 I am, sit down. बैठिए, 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 बैठिए ना. Your deputy leader has spoken. बैठिए, please. Your deputy leader has spoken. No, no, no. आप लोग बैठिए, बैठिए, बैठिए. I will allow you. बैठिए, बैठिए. अब बैठिए, बैठिए. You take us. Now please take your seat. No, see, honorable members from this side, please take your seat. I have requested all of them. Your deputy leader has already spoken. You sit down. Yes, I know, but I have to allow others also. Baithiye, baithiye. Come, please take your seat. No, please take your seat. No, they have to take your seat. First obey. No, no. No, I asked them to sit. They are sitting. Why don't you sit? Sit down. No. No, I can't. I have to run the house. No. This cannot be done. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Are baithiye. Yeah, sit down. Yes, I allowed you. Sit down. I will call you. Baithiye. Now the point is, I have to make. I have to adjourn the house. This is the way. आप लोग बैठिए. No, no. Yes, I want to react to what he said. Sit down. I will have to adjourn then. I will have to adjourn then unless you sit. The point is, see the. Now आप लोग बैठिए. आप लोग बैठिए, बैठिए. आप लोग बैठिए. I want to make a point clear. If you allow me, allow. Otherwise, I will adjourn the house. Sit down. Why the treasury benches are standing up? Sit down. Why the treasury? You see, your leader has spoken. Then why do you want? Your leader has spoken. See, I will allow you. I told you I will allow you. Sit down. See, you sit down. Your leader, deputy leader has spoken. Then what do you want? Sit down. I don't want to hear you. Yeah. No, no, I will, let me make one point. See, Honorable LOP has, see, Honorable leader of the House has said a point which I have to react. Sit down. Otherwise, yes, I said. आपको बुलाएगा बैठिए. आपको बुलाएगा बैठिए. पहले listen कर दीजिए. पहले listen आपको बुलाएगा. मैं बुलाएगा. No, वागी बोलते हैं. I have to give a clarification. You please allow that. No, no, you don't allow me to give a clarification. Please allow me to have my say. But I am on my legs and you people are not. No, is not. I don't allow. I allow to adjourn them. आप लोग बैठिए. नरेश जी मेरे दोस्त. अब जरा सुनिए बाबा. I have to react to what the leader of the house has said. Uska reaction dena hai. He has raised a relevant point. What can I do? I cannot leave like that. Yes. If leader of the house has raised a relevant point, I have to react to that. That is all what I am saying. I am saying I will allow you, but why don't you? Okay? Then I will adjourn the house. If you don't allow, then I will adjourn the house. मैंने बोला उनको बुलाएगा. मैंने बोला उनको बुलाएगा. See, I am sorry. No, I am sorry. I am sorry. I feel very sad because I went out of the way to allow the members to have their say. To have their say. And I know it is 0 hour. I went out of the way to waive the 0 hour. To allow you to have the say on condition that after that you will allow question hour also. But then, when Honorable Leader of the House has raised a relevant point, is the chair, can the chair, no, what I am speaking, you don't see.
मैं अलाउ करूंगा, आई विल अलाउ, मैं अलाउ करूंगा। आप बैठिए, मैं अलाउ करूंगा, बैठिए, मैं आई अलाउ करूंगा, बैठिए, मेरा रिक्वेस्ट है, बैठिए, ठीक है। नो, एक बात मेरे को बोलना है, if I have no right to say that, then why should I sit here? See, the point is, when Mr. Anand Sharma raised the question of ordinances, he said number of ordinances have been issued, and in principle he want to say something about the ordinances. And then one honorable member also raised, yes, Naresh Agarwal raised. Then I found senior leaders raised their hand, they want to oversee. So I said, please. So I allowed on that question, not on a particular bill. Here what happened is, immediately the question turned into a particular bill which is not here, and some are saying the provisions of the bill, some are opposing. I have not allowed the discussion on a particular bill. The fundamental question which I said can be raised is the question of issuing ordinances. That is all the point. Don't come to a particular bill. No, let me complete. If you want, see, if you want to discuss on a particular bill, it can be by a substantive motion, by a notice, by a proper notice, or when the bill is introduced. Now you can say yes. Okay. Yes, Ram Gopal Yadav. Yes, Ram Gopal Yadav. मैं तो अरे छोड़, या मैं तो बिना आपकी अनुमति के वैसे ही नहीं बोल सकता था। ये जो मामला है, इस पर सारे वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बात रखी। ये सच है जो बहन जी ने कहा कि पहले जब ये बिल लाया गया था तो सारे लोगों से डिस्कशन हुआ था, सारे लीडर्स को बुलाया गया था, जेटली जी थे, सुषमा जी थी, सब थे, विपक्ष में थे उस वक्त, और उसके बाद इस बिल को अंतिम रूप दिया गया और संसद ने उसको पारित किया। ये कहना कि अब जो चर्चा चल रही है उसमें लोगों ने पढ़ा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये ऑर्डिनेंस जो आया है ये लोगों ने पढ़ा है, और सारे देश के सामने विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी कंपैरेटिव बात कि क्या पहले बिल में थी और क्या चेंज ऑर्डिनेंसेज में किए गए हैं वो सबके सामने है। और जो चेंजेस किए गए हैं उसमें जो सोशल इम्पैक्ट होता है उसको तो बिल्कुल ऑब्लिटरेट कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया? कर दिया गया है। जो जमीन लोगों को जन्म जन्मांतर तक रोजी रोटी देती है उसको आप अधिग्रहित कर लेंगे और उसके क्या परिणाम होंगे लोगों के ऊपर, उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये सही है कि तमाम योजनाओं के लिए जमीन की जरूरत होती है और तमाम दिक्कतें, व्यावहारिक दिक्कतें आती हैं, वो बात करके उस पर भी बात करके रास्ता निकाला जा सकता था, लेकिन आपने उसको बाईपास किया। आपने लोगों से डिस्कशन नहीं किया। डिस्कशन करके इस पर भी तो कोई ये नहीं कहेगा कि यूनिवर्सिटी न बने, कोई ये नहीं कहेगा कि कोई मेडिकल कॉलेज न बने, कोई ये नहीं कहेगा कि एक्सप्रेस वे या रोड्स न बने या डिफेंस के लिए या यूनिवर्सिटीज न बने। सब उस पर सहमत होते, बशर्ते कि आप उनसे बात करते, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते, लेकिन कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। इसका नतीजा ये है कि सारे देश के किसान अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और इसलिए उनमें आक्रोश है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि सदन में कोई डेडलॉक हो, मैं नहीं चाहता हूं कि लोग कहें कि संसद कोई काम नहीं करना चाहती है। आप सारे नेताओं के साथ बैठकर इस पर बात कीजिए, कोई रास्ता निकालिए जिससे दोनों तरह की बात हो जाए और किसानों का हित भी सुरक्षित बना रहे। Sir, I have two quick points to make, both related to the ordinances. I do not want to discuss the merits on the bill. The first on the ordinances,
the leader of the House has given us information, but it is selective information. He has told us how many 100 ordinances passed during the Congress and how many ordinances passed in the last 50 years. Here is my limited point. My point is, let's look at the last 8 months and put a ratio as to how many bills have been passed and how many ordinances have been put in. If you look since independence, about 10 ordinances to 15 bills. This is in the last 9 months. This government has set a record for passing the least number of bills compared to ordinances. So the leader of the House is giving us selective information by taking a 60-year period. That is incorrect. Number two, let me finish, sir. I'm talking on the ordinance. See, the leader of the House is much more senior to me, much more articulate than me, but I will not make cheap shots by using my time to try and give an advertising slogan for 2 minutes for his bill. I won't do that. I will restrain myself, because the Trinamool Congress, when we are the only party who voted against the UPA ordinance, that time we thought they are the devils, but they are looking like angels now. The one party who opposed the UPA 2 ordinance, we think they are looking like angels, because these are in this proposed bill, last point, sir, in this proposed bill, they have given a new spin to Parliament in the ordinances. Parliament is deliberate, debate, decide. Yes. In the last 8 months, it's become decide, then become deliberate. Thank you, sir. Tyagi, I will call you. Sir, मेरा That's all. माननीय नेता सदन से बहुत आदरपूर्वक निवेदन है कि उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का किसी बहाने नाम तो लिया। मैं चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जी के ऑर्डिनेंस लाने पर पीजी मालवणकर साहब ने क्या कहा था, उसको भी नेता सदन बताते तो अच्छा होता। सर, ये लैंड एक्विजिशन की लड़ाई नहीं, जो गमलों में खेती कर रहे हैं और जो गांव में खेती कर रहे हैं, ये उनके बीच की लड़ाई है। इतना सा पानी डालना है। 1000 करोड़ रुपए आपके जैसे विद्वान आदमी के साथ, जिसके साथ हमने 40 साल काम किया है, 1000 रुपए पूरे बजट में आपने इरिगेशन के लिए रखा। आप कह रहे हैं कि इरिगेशन की योजनाएं हम रोक रहे हैं। आपने एक ट्रेन लगाने के लिए अहमदाबाद से मुंबई के बीच में 60,000 करोड़ रुपए का बजट रखा। इवन देन यू आर सेइंग कि हम लोग आपका रास्ता रोक रहे हैं। रामगोपाल जी से मैं एग्री करता हूं, आप बैठिए, सारे नेताओं को बैठाइए, बातचीत कीजिए, लेकिन गमले वालों में, खेत वालों में थोड़ा फर्क कीजिए। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं संसद में भूमि अधिग्रहण पर सरकार बनाम विपक्ष के टकराव से जुड़ी अहम खबर से। मोदी सरकार ने यूपीए सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून में अध्यादेश लाकर के बदलाव कर दिया और इसी अध्यादेश को आज सरकार संसद में रखने जा रही है। लेकिन अध्यादेश के जरिए किए गए बदलाव को लेकर अब विपक्ष के साथ साथ कई किसान संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं। अन्ना हजारे ने इसे किसान विरोधी और अंग्रेजों के कानून से भी खराब बताया है। संसद में अध्यादेश को लाए जाने से पहले ही आज इस पर विपक्ष का हमला होगा और उम्मीद के मुताबिक ही यह हमला लगातार जारी है। राज्यसभा में सुबह से ही इस पर बवाल भी हो रहा है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने इस अध्यादेश का विरोध शुरू कर दिया और इसके बाद बीएसपी नेता मायावती से लेकर के समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने भी इस पर अपनी राय रखी है। इसे किसान विरोधी बताया जा रहा है और इसे वापस लेने की मांग की जा रही है। अभी भी विपक्ष का विरोध लगातार जारी है। वहीं सरकार की ओर से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अध्यादेश का बचाव करते हुए कहा है कि अध्यादेश में किसान विरोधी कुछ भी नहीं है, इसमें किसानों के हितों का ख्याल रखा गया है। जेटली ने कहा है कि विपक्ष के लोगों ने अध्यादेश को पूरी तरह से पढ़ा ही नहीं है। इतना ही नहीं, अध्यादेश के जरिए कानून थोपने के आरोपों पर भी जेटली ने अपनी सरकार का बचाव किया और कहा कि पहले सरकारों में भी खूब अध्यादेश लाए गए हैं, इसलिए विरोध नाजायज है। माननीय उपसभापति महोदय, पूरे देश की रजामंदी थी, पूरे देश की सहमति इस पे थी। जब ये संसद में पास हुआ है, बीजेपी भी उसमें शामिल थी, अगर सरकार को इस पे कोई भी चर्चा करनी थी, पहले बरसों लगे थे।
किसानों के संगठनों से बात हुई, राज्य सरकारों से बात हुई। यहां एक नया तरीका है बिना किसी से बात किए मनमानी करना। भूमि अधिग्रहण के मामले में तो ये कोई जल्दबाजी में नहीं लाया गया था। इसके ऊपर दोनों सदन में काफी डीपली, काफी गहन चर्चा हुई थी और आम सहमति से भूमि अधिग्रहण विधेयक पास हुआ था। हमारी पार्टी इस नतीजे पर पहुंची है कि ये पूरा अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है, बल्कि देश के कुछ मुट्ठी भर बड़े बड़े उद्योगपति और धन्ना सेठों के हित में है। सारे लीडर्स को बुलाया गया था, जेटली जी थे, सुषमा जी थी, सब थे, विपक्ष में थे उस वक्त, और उसके बाद इस बिल को अंतिम रूप दिया गया और संसद ने उसको पारित किया। ये कहना कि अब जो चर्चा चल रही है उसमें लोगों ने पढ़ा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये ऑर्डिनेंस जो आया है ये लोगों ने पढ़ा है और सारे देश के सामने विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी कंपैरेटिव बात कि क्या पहले बिल में थी और क्या चेंज ऑर्डिनेंसेज में किए गए हैं वो सबके सामने है। इस भूमि अधिग्रहण बिल पर जब विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो ऐसे में सरकार की ओर से सफाई की कमान संभाली है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। जेटली ने कहा है कि विपक्ष ने अध्यादेश को ठीक से पढ़ा ही नहीं है और इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। अभी ये कहा गया कि No, please, 1 second. The poster, please. No, don't do that. इस सदन को बाईपास किया गया। इस देश में कोई कानून नहीं बन सकता जो सदन को बाईपास करे। मेरे मित्र आनंद शर्मा जी याद रखें कि इस देश में आज तक 636 ऑर्डिनेंसेस आ चुके हैं। उसमें से 80% तब आए हैं जब आनंद शर्मा जी की पार्टी सरकार में। तो इस तरह से संसद के भीतर तो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर के यह हंगामा हो ही रहा है, लेकिन संसद के बाहर भी विरोध का मोर्चा टीएमसी ने संभाला हुआ है। सदन शुरू होने से पहले ही टीएमसी सांसदों ने संसद के बाहर अध्यादेश का विरोध करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। पोस्टर, बैनर और तख्तियां लिए हुए टीएमसी सांसदों ने अध्यादेश को किसान विरोधी, गरीब विरोधी बताते हुए जमकर नारेबाजी की है।